नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाय। वेयर इज प्रदीप जी? ओह, ही इज हियर। ओके जी। It is postage stamp versus सो जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, in Chinese ni hao, in Japanese konnichiwa. Pradeep ji, Habariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. right, we have to start with some very very sad news indeed. There was a stampede Yes, sir. in a prayer meeting in Hathras, and the latest figure is about 60 people are dead, most of them women and children, and it's terrible, absolutely terrible. There was a stampede, भगदड़ मच गई और तकरीबन 60 लोगों की मृत्यु अभी तक उसकी पुष्टि हो चुकी है, एंड द डेथ टोल इज लाइकली टू गो अप। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम सच अ थिंग हैज हैपेंड। मतलब ज़्यादातर रिलीजियस गैदरिंग्स पर ही ऐसी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट रिसेंटली गॉड नोज हाउ मेनी पीपल रियली डाइड ड्यूरिंग द हज दिस टाइम। Yes, exactly. वहाँ पर हीट स्ट्रोक से लोग मर गए, अभी यहाँ पर ये हो गया। ये मतलब लोगों को तरह मुझे लगता है इस तरह सेंसिबली काम करना चाहिए, और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे भी लोग हैं, द एग्जिट, द एंट्रेंस शुड हैव बीन ह्यूज, इट शुड हैव बीन बिग। ये न जाने कितनी मरतबा लोग इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, प्रशासन के लोग इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब अभी एक्शन ले लेंगे आप ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ, जो प्रशासकीय अधिकारी थे, जिन लोगों ने उनको परमिशन दी उनके खिलाफ, लेकिन जो लोग चले गए वो तो वापस आने वाले नहीं हैं। इट इज़ वेरी सैड। Religious processions, really government will have to control it, and it's very difficult to control it also. You can't control an uncontrollable man. If it's 1,000, 10,000 appear. If it's 10,000, 1 lakh appear. It's always difficult to control. But then the government will have to make some, because if you're having deaths like this, anytime. Which is really and truly sad. I mean, what has happened over there is absolutely terrible. It's a terrible tragedy which has happened today on the 2nd of July. And today we saw Modi ji replying to on the president's address. Yes, yes. And I wish Modi ji had just stuck to his agenda, very frankly speaking. कि मोदी जी अगर वो बात करते हैं कि अगले 100 दिन में क्या करने वाले हैं, अगले 1 साल में क्या करने वाले हैं, किस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ठीक ठाक करेंगे, कैसे और ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करेंगे, जैसे वो बंदरगाह की बात हो रही है, पोर्ट की बात हो रही है, विच विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, हमारे यहीं महाराष्ट्र में, इन सब चीज़ों की अगर बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट मोस्ट ऑफ हिज स्पीच वाज डेडिकेटेड आई थिंक टू मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी सीम्स टू हैव rattled the BJP a little bit. So and I agree with you that perhaps Rahul Gandhi could have also avoided carrying pictures of Lord Shiva and Wait, 2 days, you needed something very concrete. The whole country was looking towards something very substantial, because you got a very responsible opposition. The people are elected a very strong opposition, and they put the ruling party in a fix by putting it short of majority. So everybody thought debate would be full of something for the country, something for the nation. Sir, अगर राहुल गांधी जी नीट स्कैम के ऊपर बात करते और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन उसके निकल सकते हैं, युवाओं की जो आज ज़िंदगी खतरे में है, नौकरियों के ऊपर बात करते, सिर्फ उसी के ऊपर बात करते, ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरी सोच है। और नरेंद्र मोदी जी भी अगर अपनी सरकार का विकास का जो एजेंडा है, अगर उसी के ऊपर काम करते तो शायद, मुझको ऐसा लगता है, I would have enjoyed it much more. He started earlier saying that nobody is going to respond in the parliament the way Rahul Gandhi talked. So probably tried to set the agenda, but then he came back to it. And the 2 days actually were totally a waste, we can say it, because nothing concrete has really emerged. Presidential address hai, us par baatein ho rahe the, but in that address also there were a lot of things that you could talk, because Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge had drafted a lot of things जो presidential address में होना चाहिए था, हुआ नहीं था. Agniveer hai, you got the NEET scam hai, which was whitewashed in the president's, Jammu and Kashmir attacks the train accidents, these all things they're talked that we will, why is it not? But when it came to talking in the parliament, you had all the photographs of gods and
I mean, there is धर्म all, विशेष। in my personal opinion, there is all right for a sensation. That you But just, then you're carrying it too long. क्या? कब तक? In any event, to talk about Hinduism, definition of Hinduism, and going back to बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर वापस जाना वगैरह, I mean, why? बच्चों के झगड़े जैसे होते हैं वैसे हो रहे हैं। I mean, 103 साल पहले ये हुआ, 104 साल पहले ये हुआ, 71 साल पहले ये हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मोदी जी वही, नेहरू जी ने ऐसा किया है, इंदिरा जी ने ऐसे किया है, तो ये सुन सुन के लोग थोड़ा परेशान हो गए। और जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल है, चलिए ठीक है, आप इमरजेंसी को बिल्कुल याद रखिए, लेकिन बार बार सिर्फ इमरजेंसी के बारे में बात करने का क्या मतलब हुआ? जैसे आज की तारीख में जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, मैं आई वाज हियरिंग अ बाइट ऑफ अ स्टूडेंट ऑन वन ऑफ दीज चैनल्स कि भैया इमरजेंसी ठीक है, लेकिन हमारी जो इमरजेंसी चल रही है उसके बारे में तो बात कीजिए। जो नीट स्कैम की वजह से जो हमारी आज दुर्दशा हुई है उसका क्या मतलब, उसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं है प्रदीप जी। यू टॉक टू एनी लेमैन एंड ही सेड पार्लियामेंट में सब झगड़ा ही देख रहे हैं हम लोग, पार्लियामेंट में झगड़ा देख रहे हैं, स्टेट असेंबली में भी झगड़ा देख रहे हैं, और स्टेट असेंबली में 2 कदम आगे माँ बहन की गाली ओपनली देना शुरू कर दिया है जी। आई मीन व्हाट आर द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। आरएसएस वाज पुलिंग अप द बीजेपी आल्सो इसी के लिए कि आप लेवल ऑफ डिस्कोर्स को इतने नीचे लेके आए कि इट इज स्प्रेडिंग काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑल अक्रॉस द नेशन अमंग वेरी सेक्शंस ऑफ द ग्रुप। आज जो लेमैन है वो भी देख के परेशान हो गया, बोले क्या चल रहा है पार्लियामेंट में, क्या चल रहा है स्टेट असेंबली में। सबसे वाहियात बात क्या है प्रदीप जी, राहुल गांधी जी के भाषण के बाद इतने डिस्टर्ब हो गए लोग, इतने डिस्टर्ब हो गए कल, और आज जो राइट विंग भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर समर्थक जो हैं उनको उन्होंने पप्पू खान कहना शुरू कर दिया। अगेन दे हैव रेज्ड दैट बोगी ऑफ द फैक्ट दैट फिरोज गांधी was actually a Muslim. I mean, this is like idiotic. I mean, the most idiotic thing I've ever heard. His Parsi ancestry is known to all. There's this whole family tree. His father, his grandfather, his great grandfather, his great grandfather. नवसारी से लोग आते हैं, मतलब एक चीज रिकॉर्डेड है, उसके बावजूद अगर आप ऐसी बात करेंगे, you are only helping राहुल गांधी। और एग्जैक्टली वही चीज है जो मोहन भागवत जी ने जिसका जिक्र किया, जरा अहंकार छोड़ दीजिए। I would have been very happy if Mr. Modi had just ignored Rahul Gandhi. Very frankly, he would have said, he could, जो उन्होंने बोला ना कि ये बचकानी हरकत है, ये बचकाना दिमाग है, तो he would have said कि भाई बचकाने दिमाग का बचकाना भाषण, इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूं? मुझे जवाब देने अखिलेश यादव जी ने जो थोड़ा भाषण दे दिया, he talked about facts and the whole country wants to hear this. अग्निवीर के बारे में बात किया, अलग अलग मुद्दे पर बात की है। अग्निवीर में कहा कि मैं खुद सैनिक स्कूल में गया हूं, मैं ऑफिसर से बात कर रहा हूं, मैं उनसे तो ये पीपल वांट टू हियर दिस। आप यू वांट टू ब्रिंग अ रिफॉर्म इन द कंट्री, दिस इज द वे यू ब्रिंग रिफॉर्म। आप पूरे दिन 2 दिन तो यही, इवन अ कॉमन लेमैन विल से 2 दिन वेस्टेड, पार्लियामेंट्स टाइम हैज बीन वेस्टेड। दैट्स राइट, बोथ फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द ऑपोजिशन, बोथ हैव वेस्टेड द टाइम। व्हाट्स देयर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री? आप बताइए ना, लोगों के लिए क्या है? इसमें जो डिस्कशन हुआ प्रेसिडेंट साहिबा के एड्रेस के ऊपर, लोगों को क्या मिला? मतलब चलिए, इनफैक्ट इन द राज्यसभा some people spoke very well. Sanjay Singh in fact spoke very well. A couple of other people also spoke well. But the point is this: in the Lok Sabha we expected better. In any event, we will come back to that. At the moment with us from the Ajit Dada Pawar NCP, we have Mr. Mukesh Gandhi. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? कैसे हैं? जय सिया राम, हर महादेव। जय सिया राम। तो सर आज तो हाथरस में बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, तकरीबन 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक जो मालूम पड़ा है। आई मीन दिस इज रियली ट्रैजिक। ये किस तरीके से कथावाचक, भजनवाचक, ये जितने लोग जो इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, मतलब इनके ऊपर कुछ, मुझे लगता है कुछ अंकुश लगाना चाहिए, कुछ कंट्रोल करना चाहिए। ये है क्या सर? मुकेश गांधी जी आप बताएं इसके बारे में कि मतलब स्टैम्पीड हो गई और इतने ज़्यादा लोग मर गए, उसमें ज़्यादातर मरने वाले बच्चे और औरतें। सर बताइए। हमारे यहाँ अंधश्रद्धा का बहुत अतिरेक जब होता है ना, तब ऐसा होता है। जी बिल्कुल। और जो कथाकार होते हैं, वो कथाकार को कभी ऐसा लगता है कि इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो हम स्वयं भगवान बन गए हैं। पर आने जाने वाले लोगों की सुविधाएं, उनकी तकलीफें, उनके मंडप में उनका आयोजन, उनके पानी की, खाने की, टॉयलेट की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो बेसिक कभी कभी होती नहीं है। और ऐसे हादसे कहीं ज़्यादा भीड़ होती है तब वहीं हो जाते हैं। उसके लिए हमें बहुत खेद है। और जो लोग गए
उनको ये कहेंगे कि ये तो प्रभु के धाम में गए। अरे पर प्रभु के धाम में नहीं गए हैं, ये लोग कमौत से मर गए हैं। तो उनका मुझे बहुत दुख है, उनके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले। ओम शांति शांति। I mean, this is absolutely terrible. In any event, we'll talk about it. This is a very very tragic thing which has happened. We'll talk some more about it. But let's come back to Maharashtra, sir. Maharashtra के अंदर अगर हम लोग आए, अजीत दादा पवार साहब का बजट, lovely budget. In my opinion, it's a very very good budget. But the only thing is, where is he going to get the money from? मुकेश गांधी साहब जो उन्होंने सारे शॉप से उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, where is the revenue? Revenue कहाँ से आ रहा है सर? वो जरा बताएं प्लीज. We are talking about अजीत दादा पवार by the way. जी बताएं सर प्लीज. अजीत पवार जी का ये 10वां बजट है. ही इज नॉट अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर. He has presented in Maharashtra 10th budget, which he has presented on last week, on 2 days before. तो ये जो रेवेन्यू जनरेशन है वो उनके पास पूरा प्रावधान है. उनके प्रावधान में क्या है कि इनके पास जो अभी जो पूरा प्रावधान का जो जीएसटी का जो कलेक्शन है, अप्रोक्सीमेटली इन्होंने अभी 6 करोड़ 12 लाख 293 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया है. और इस वक्त महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा भी 6 लाख करोड़ से ज्यादा है. अभी ये जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, तो उनका कहने का ये है कि उनको जो जीएसटी मिलता है वो जीएसटी का कलेक्शन इनका बहुत स्ट्रांग है. और उनको गवर्नमेंट से भी अभी जीएसटी में 50 to 60,000 करोड़ जो मिलता है गवर्नमेंट को, टोटल दिल्ली गवर्नमेंट को, उसके सामने इनको 2.20 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू इनको आता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को. जो आप कहते हैं ना कि रेवेन्यू कहां से आता है, तो 2.20 करोड़ रेवेन्यू आता है. और बाद में 50% जीएसटी जो उनको वापस मिलता है वो भी अलग उनके पास रेवेन्यू आता है. तो सेंट्रल से मिलने वाला टोटल जीएसटी 1.6 जीएसटी ये सब मिलके अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू इनको जीएसटी के माध्यम से मिलता है. ये इनका बेसिक रेवेन्यू है. और भी रेवेन्यू के सोर्स है, वो रेवेन्यू भी उनको मिलते रहते हैं. तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये, और इन्होंने जितनी भी योजना की है वो शिंदे साहब ने और अजीत पवार दादा ने पूरा क्लियरली कहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर से हम ये पूरा बजट करके लोगों को सुविधा दे रहे हैं. तो इन्होंने इसमें कोई लॉलीपॉप या ये रबड़ी लॉलीपॉप है गांधी साहब, लॉलीपॉप वही उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस का कहना है ये लाडली बहन वाले स्कीम है. ये तो लॉलीपॉप ही आप दे रहे हो. बहन लाडली बहन के चक्कर में आप एक पॉपुलर स्कीम लेके आए, उसका फंडिंग किस प्रकार से होगा? तीन सिलेंडर आप फ्री दे रहे हो, वो 3 सिलेंडर किस प्रकार से? सुप्रिया सुले जे पॉपुलिस्ट बजट, शरद पवार से पॉपुलिस्ट बजट, इलेक्शन को नजर में रखते आपने इस बजट को बना दिया. उद्धव ठाकरे जी भी आलोचना करने लगे कि लाडली बहन किस प्रकार से. जितेंद्र आवाड़ कहा कि जिसने अपने बहन को देखा नहीं वो लाडली बहन का स्कीम लेके आया. तो अलग अलग रिएक्शंस आए, पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ स्कीम्स इन द बजट. गांधी साहब देखिए क्या करते हैं कि जब कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है कि महिलाओं को 6,500 रुपया देते हैं, तो उद्धव ठाकरे जी, जितेंद्र आवाड़, जयंत पाटिल, शरद पवार जी सब तालियां बजाते कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है. और जब इन लोगों ने कैलकुलेशन के साथ में पूरा बजट प्रेजेंट किया है और लाड़की बहना का ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सफल होगा और इससे महिलाओं को बहुत ही मदद मिलेगी. देखो पहले भी गवर्नमेंट ने बचत घर महिलाओं के लिए किया, तब भी विरोधकों ने उनकी टीका की थी. पर आज वही बचत घर के माध्यम से कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को आज रोजी रोटी मिलती है, उनको उनके संसार चलते हैं, उनका प्रोग्रेस होता है. तो ये लाड़की बहना में कोई इतना बड़ा फंड नहीं दे दिया है कि जिसके कारण अटक जाए. और 3 सिलेंडर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है. तो मेरे हिसाब से ये जो ऑपोजिशन वाले जो कुछ भी विरोध करते हैं वो विरोध करना चाहिए, इसलिए विरोध करते हैं. बाकी ये स्कीम आप देखना सक्सेसफुल होगी और इसमें उनके लिए उनका जीआर भी निकल गया है. तो आपके मुताबिक जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जो लाडली स्कीम थी शिवराज सिंह चौहान साहब की,
जिसकी वजह से हाँ। बहुत महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिए, उसकी वजह से शायद शायद एनडीए का रिवाइवल हो जाएगा असेंबली चुनाव में। हाँ, वो तो देखिए है ना, कोई भी बजट, कोई भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या गुजरात एमपी होगा, जी। हर स्टेट जो फाइनेंस इलेक्शन के पहले जो बजट रिलीज करता है ना, वो बजट इलेक्शन के ध्यान में रख करके ही करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये जो अभी इन्होंने जितनी भी रिलीफ दी है और जितनी भी योजनाएं दी है, वो मुझे लगता है कि अजीत पवार जी ने बहुत सच्चे कैलकुलेशन से परफेक्ट, मैंने कुछ फाइनेंस सेक्रेटरी और आईएएस ऑफिसरों के साथ भी डिस्कशन किया था कल, और मैंने उनको यही आपके जैसा ही सवाल पूछा कि जो ऑपोजिशन कहते हैं कि ये क्या फुलफिलमेंट होगा, तो इन्होंने कहा कि इट इज 100% फुलफिलमेंट होगा, और वो पूरा वर्कआउट करके ये योजनाओं को बजट में शामिल करके उनको ओपन किया है। गांधी साहब, मगर आप पे आरोप है कि आप फेवरेटिज्म करते हो, अजित पवार जी फेवरेटिज्म करते हैं। आप अपने ही जितने सेलेक्टेड लोगों को उनके एरिया में बजट अलॉट करते हैं, फंड्स अलॉट करते हैं। जितेंद्र आवाड़ जी करीबन 200 फोन किए थे अजित पवार जी को, 200 बार ऑफिस को कांटेक्ट किया अजित पवार जी के, उनको अपने एरिया में डेवलपमेंट फंड चाहिए था, नहीं मिला, नहीं देंगे। तो एक ऐसा उदाहरण बन गया है कि आप अपने ही फेवरेट्स जो है उनमें फंड बांट रहे हो, अपने पॉलिटिकल जो फेलोमेन है उन पे फंड्स बांटते हो, बाकी ऑपोजिशन को टोटली नेग्लेक्ट करते हो। नाउ जितेंद्र आवाड़ का कंटिन्यूस चार्जेस है आप पर। देखिए, जितेंद्र आवाड़ जब थे मिनिस्टर, तब हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी कितने लोगों की डिमांड थी, कितने लोगों का काम हुआ है, कितने बड़े बड़े ओपनिंग हो गए, कितने बड़े बड़े ये हो गए, आज तक उनका कोई आपको कंक्लूजन दिखाई दे रहा है? ये स्ट्राइड इज लेवल बेस्ड। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जितेंद्र आवाड़ ने काम अच्छा करने का, उन्होंने शुभारंभ किया था। और अजीत पवार के बारे में ये जो एक गलत फहमियां फैलाने का काम चल रहा है, वो गलत है कि वो हर एमएलए को, इनको जो भी फंड अलॉटमेंट डेवलपमेंट के लिए होता है, उनको कंपलसरी देना ही पड़ता है। उसमें अजीत पवार कोई रुकावट नहीं कर सकते हैं। और 200 टेलीफोन किए, ये बात में मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर मुकेश गांधी साहब ये बता दें कि जो मेन क्रिटिसिज्म आ रहा है लाडली बहना स्कीम को लेकर के, बहुत अच्छी स्कीम है वैसे, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। हर एक कोई ये बोल रहा है कि अजीत दादा पवार साहब की जो खुद की लाडली बहना है, उनके खिलाफ तो पता नहीं वो क्या क्या बोल गए चुनाव के दौरान। तो ये लाडली बहना स्कीम का क्या मतलब हुआ, ये तो जरा समझाओ ना। नहीं, अभी ऐसा है, खुद की बहन, खुद की पत्नी की तो बात अभी पूरी पुरानी स्टोरी हो गई। अभी इन्होंने जो किया है वो महाराष्ट्र की जो शोषित, पीड़ित और जो मध्यम वर्गीय और गरीब महिला है, इनके लिए योजना है। अभी इसके लिए आप सैटायर करेंगे कि आपने आपकी बहन का क्या किया, आपने आपके भाई का क्या किया, वो बात के साथ में कोई मेल नहीं जमता है। लेकिन ये बजट जो है, वेरी क्लियरली द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शंस, मतलब चुनाव के लिए तैयारी शुरू है। तो इस चुनाव में असेंबली का जो चुनाव का जो परिणाम है, वो लोकसभा चुनाव के परिणाम से भिन्न हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है आपके मुताबिक, या क्या करना चाहिए मुकेश गांधी साहब? देखिए, पहला तो ये जो यूपी गवर्नमेंट जो हमारी है जी, शिवसेना, शिंदे जी, अजीत पवार, एनसीपी गठ और बीजेपी, ये तीनों के अंदर जो कुछ भी बातें होती है, वो उनको अंदर बैठ के बंद दरवाजे में अपनी पॉलिसी, अपने प्रोपेगेंडा की जो थीम है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनको रिलीज करनी चाहिए। अगर कोई नेता या उनका प्रवक्ता इंडिविजुअली अगर कुछ न कुछ गलत फहमियां अगर यूपी गवर्नमेंट में से कोई फैलाएगा, तो उसकी तकलीफ हमारी यूपी गवर्नमेंट को होगी। ये पहली बात। दूसरी बात कि अभी यूपी गवर्नमेंट को किसी के ऊपर प्रहार किए बिना जो अपनी योजनाएं, अपना जो कार्य है, अपना जो लोगों के लिए, जनहित के लिए काम करना है, वो बातों को समाज में जाकर के अनटू द लास्ट ले जाना चाहिए। और तीनों का, थर्ड बात कि जो सीटों का बंटवारा होना है, वो बहुत ही जल्दी 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, एंड ऑफ दिस मंथ तक हो जाना चाहिए। और उसमें एक दूसरे को क्या सपोर्ट दे रहे हैं, जो लास्ट टाइम जो एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा था, काम नहीं कर रहे थे, वो बात नहीं होगी।
तो मुझे लगता है कि महायुति की गवर्नमेंट के लिए लोगों को फीलिंग है। और दूसरा कि जो मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ और मुसलमानों ने जो ब्लॉक वोटिंग किया, वो मुझे नहीं लगता है कि ये टाइम में इलेक्शन में पूरा वही माहौल वही रिपीट होगा। अभी लेकिन और यहाँ कोई नया पर फैक्टर आएगा। तो चलिए वो शायद ना हो आपके मुताबिक, अगर आप बोल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और बन रहा है अभी। एक तरफ लक्ष्मण हाके जी और उसके सामने जरंगे पाटिल जी, ओबीसी वर्सेस मराठा। सर वो तो बहुत हीटअप हो रहा है मामला सर, और ये भी कहा जा रहा है कि लक्ष्मण हाके जी को शायद भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट दे रही है, समर्थन दे रही है। अभी देखिए, ये तो थोड़ा वक्त का टाइम है। और जरांगे पाटिल तो किसने लॉन्च किया है, आपको सबको मालूम ही है कि वो किसने लॉन्च किया है और किस तरह से पूरे माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयत्न चल रहा है। अभी इसका कोई ना कोई अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो महाराष्ट्र के अंदर ये इलेक्शन में बहुत बड़ी मिसफायर अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों के साथ होगी। तो मुझे लगता है कि ये मामला सुलझना चाहिए और इसमें कुछ वरिष्ठ लोगों को मिलकर के बैठ करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। गांधी और मैं एक एक्सपेक्ट करता हूं कि ये महाराष्ट्र का इलेक्शन अभी बहुत ही अच्छी हेल्दी पोजीशन में होना चाहिए। नहींतर तो एक महाराष्ट्र में अभी इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे हैं, इतनी आक्षेपबाजी चल रही है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन है कि ये बिहार का इलेक्शन है। नहीं गांधी साहब, ये यही टॉपिक पे आ रहा हूं। द महाराष्ट्र लो लेवल ऑफ डिस्कोर्स, द लो लेवल ऑफ डिबेट्स, द लो लेवल ऑफ इंटरेक्शन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज जो हम असेंबली में देख रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली में जिस प्रकार से कल हो गया, जो दानवे जी जो है, अंबादास दानवे जी जिस प्रकार से माँ बहन के गालियां देने लगे प्रसाद लाड़ को, और दोनों के जो एक्सचेंज हो गए, मारपीट, और बाहर मिलो मारेंगे, रास्ते पे दौड़ेंगे, छोड़ेंगे, मारेंगे, ये लो लेवल ऑफ डिस्कोर्स। बिकॉज जो एक वक्त था जो हम लोग डिस्कोर्स देखने के लिए लोग तरसते थे कि क्या बात करते हैं, असेंबली में जब फाइन डिस्कोर्स होते थे, पार्लियामेंट में फाइन डिस्कोर्स होते थे। आज जो गाली वाली का जो एक आरएसएस ने भी बीजेपी को वार्निंग दिए थे कि यू आर रिड्यूस लो लेवल्स ऑफ डिबेट्स आर डिस्ट्रॉइंग द एंटायर कंट्रीज, जो बोलते हैं एक एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आज हम लोग हर फेज में वही देख रहे हैं। हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू सी इट गांधी साहब? ये देखिए, अभी ये जो कल जो असेंबली में जो विधानसभा में जो हुआ है वो बहुत ही घटिया और घृणास्पद हुआ है। इस तरह से दोनों पे दानवे जी ने जिस तरह से एग्रेसिवली जो अपने जहन में जो बातें थी उसको अंदर रखना चाहिए था, पर वो न रखते हुए उसने स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, पर इट वाज द एग्रेसिवली उन्होंने अपनी बातों को क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के जिस तरह से गालियां बोले, वो पूरी मान मर्यादा को उन्होंने छोड़ दिया और वो बहुत गलत काम किया है। फिर बाद में बीजेपी डिफेंड में आई है, डिफेंड होकर के उन्होंने अपनी बात कही है, पर उनको भी धीरे से ये बात को साइड लाइन करनी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में ये सब मामला होते ही रहेगा। क्योंकि महाराष्ट्र की गरिमा को बचाने वाला, टिकाने वाला अभी कोई ऐसा नेता महाराष्ट्र में आगे दिखता नहीं है कि जो ये सारी गरिमा को पूरा सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाए। इसमें शरद पवार जी जैसे नेता को एक गरिमा बढ़ाने का काम महाराष्ट्र के लिए करना चाहिए, पर वो भी एक अपनी पार्टी के अंदर विभाजित होकर के बैठे हैं और वो अपने महाविकास आघाड़ी का ही देखते हैं। इसलिए अभी महाराष्ट्र में अभी देवेंद्र फडणवीस का भी थोड़ा डाउनफॉल आया, तो अभी अजीत पवार जी के पास भी लिमिटेड जनाधार है और लिमिटेड एमएलएज है। शिंदे जी अपना प्रयत्न कर रहे हैं, पर शिंदे जी के प्रयत्न से भी लोगों में अंदर जो एक इमेज होनी चाहिए कि ये व्यक्ति बोलेगी तो यस और ये व्यक्ति बोलेगी तो नो, ऐसा कोई व्यक्तित्व आज महाराष्ट्र में खड़ा हो जाए तो ये महाराष्ट्र की सिचुएशन संभलेगी। गांधी साहब, पार्लियामेंट में जो देख रहे हैं हम लोग 2 दिन से लगातार, राहुल गांधी जी ने कल कहा कि दोज हु कॉल देमसेल्व्स हिंदूज इंडल्ज इन वायलेंस, दोज हु कॉल देमसेल्व्स हिंदूज इंडल्ज इन वायलेंस। तो आज जिस प्रकार से मोदी जी के रिस्पॉन्स हो गए कि यू कैन नॉट ब्रांड द एंटायर हिंदूज एज वायलेंट और अलग अलग बातें, तो क्या हम लोग क्या यहाँ पार्लियामेंट का डिस्कोर्स भी इस प्रकार से देख रहे हैं? बिकॉज वी थॉट दैट
ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग किया था, जनता ने जनादेश ऐसा दिया कि ऑपोजिशन को भी स्ट्रॉन्ग किया, मोदी जी को भी मेजॉरिटी से कम दिया, तो एक जबरदस्त वातावरण होगा पार्लियामेंट में, एंड वी कैन सी अ फैंटास्टिक डिस्कोर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट ये 2 दिन से जो चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी गांधी साहब? देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, ये गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र की जो बात है, हमारे यहाँ जो रणभूमि है वो रणभूमि हमारी पार्लियामेंट हो जाती है। और कल जिस तरह से राहुल गांधी को ऑपोजिशन लीडर के होने के बाद में उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी वो इतनी बैलेंस होनी चाहिए थी, इतनी मैच्योर्ड होनी चाहिए थी, पर जैसे वो इलेक्शन के अंदर अपना भाषण देते हैं उसी प्रकार का भाषण देने का उन्होंने कार्य किया। और भाषण देने का कार्य किया, चलो एक आदमी की आदत होती है, पर आज वापिस ध्रुवीकरण का वही कार्यक्रम बना करके हिंदू धर्म हिंसाचार करते हैं। जैसे पहले भगवा आतंकवाद सुशील कुमार शिंदे ने डाला, अभी ये अभी कहते हैं कि हिंसाचार करते हैं। ये बात करने से देखो, हिंदू लोग इतने सहिष्णु हैं वो पूरे विश्व को मालूम है। हम हिंदू लोग कभी भी सामने से जाके प्रहार नहीं करते, हमारे पर प्रहार आएगा तो उसको डिफेंड करेंगे, पर हमने कभी भी ये नहीं किया है कि हमने हिंसाचार बढ़ाया है। देखिए, जब हमारे राहुल गांधी जी तो ये कहते हैं मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने अब हिंदुओं को ये परिभाषा दी है, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि सिर्फ मोदी जी सब हिंदू नहीं है, बीजेपी सारे हिंदू नहीं है, आरएसएस सब हिंदू नहीं है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, ये भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड है सर। नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने पलटी मारी है। पहले उन्होंने हिंदुओं को पहले देखो, देखिए आप उनकी पूरी स्पीच सुनिए, मैंने 3 साल He was talking to the BJP. He said the BJP has made Hindus like that. अरे सर सुनिए, शुरू में उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसावादी है, ये बात पहले उन्होंने की, फिर बाद में पीछे से उनके कांग्रेस के अपने क्या एमपी हरियाणा के उसने प्रॉम्प्ट किया कि बीजेपी, फिर बाद में उसने पूरा पल्ला इसको बीजेपी के ऊपर डाल दिया और नरेंद्र मोदी के ऊपर डाल के इनफैक्ट जब मोदी जी इस पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे तो राहुल गांधी ने बोला नहीं। मोदी जी जब खड़े हुए और खड़े होके मोदी जी ने जब डिफेंड किया वो बात को, तब उन्होंने वो पूरा पल्ला। तो आप ये बता दें सर, पहला तो ये मुकेश गांधी साहब आप ये बता दें, चलिए ठीक है, आप तो राहुल गांधी की तारीफ तो करेंगे नहीं, आप चले जाने दीजिए, लेकिन आप ये बता दीजिए कि आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लोग बोलते रहे, जब वो बोल रहे थे लोग चिल्लाते रहे मणिपुर मणिपुर मणिपुर, मणिपुर पर मोदी जी ने एक लाइन नहीं बोली, अभी तक मणिपुर कर रहा है। देखिए, मणिपुर के ऊपर हमारा राजीव जी पूरा लॉन्ग डिस्कशन आपके ही चैनल पे हुआ है और हमने पूरा डिस्कशन किया है। ये बहुत डिस्कशन किया है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता मणिपुर? मेरी बात सुनिए, पर आज जिस तरह से इतनी नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब पूरा विधान दे रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो व्हाट फॉर मणिपुर 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 करके पूरी मणिपुर, हाँ, पर लॉजिक भाई उनका नरेंद्र मोदी जी का लॉजिक होगा। और आप देखना कि 10-15 दिन के अंदर, आप मेरा वाक्य लिख के रखना, 15 दिन के अंदर मणिपुर के बाबत में नरेंद्र मोदी जी का कोई बड़ा स्टेटमेंट आएगा, कोई बड़ा कार्य होगा, और मणिपुर का जो प्रॉब्लम है ना उसको फोकस करके सॉर्ट आउट करने का काम 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। 15 दिन के अंदर। But as an opposition, no, Pradeep ji, wait a minute. As an opposition, they have the right to ask. Why you not talking about Manipur? It's over a year. Sir, 1 साल से ज्यादा हो गया है। कल के स्पीच में जो फोटोग्राफ्स निकाल के राहुल गांधी जी दिखा रहे, कई भगवान शिव के फोटोग्राफ निकाल के दिखा रहे कभी। अच्छा, राहुल गांधी को ये बोलने का क्या अधिकार है कि शिव जी का धनुष्य, अरे त्रिशूल उन्होंने जमीन में गाड़ दिया? उससे अच्छा मणिपुर पर डिस्कस करते हैं, अग्निवीर पर डिस्कस कर लेते, कुछ लाइवली बात कर लेते। ये भगवान का फोटो, ऑपोजिशन लीडर एक स्टेटस है पूरे देश में, आपको एक ऑपोजिशन लीडर बहुत बड़ा पद दिया है, मगर आप
आपने फोटो निकाल के भगवान शिव का फोटो, Mr. गुरु Mukesh नानक का Gandhi, फोटो, why is the Prime Minister not talking about Manipur? For the last 1 year, he has not spoken about Manipur. Why? देखिए, मणिपुर का इश्यू के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि वाई नरेंद्र मोदी इज नॉट स्पीकिंग। इनके पीछे भी नरेंद्र मोदी जी का, अच्छा बीच जी। में अमित शाह जी ने पूरा उसके लिए पूरा इंटरव्यू दिया है, पूरी बात सर मणिपुर पार्लियामेंट के में लिए क्यों नहीं सब बोला? की है। सर इंटरव्यू देने के पार्लियामेंट बाद में बोला सर है, आप भी जानते अमित शाह ने हैं, आप भी अमित शाह जानते ने हैं पार्लियामेंट की गरिमा अलग में होती मणिपुर है। के बारे में जवाब दिया है। पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने मणिपुर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सर मणिपुर इज स्टिल बर्निंग, अभी भी वहां पर है। वायलेंस खत्म नहीं हाँ, हुई है। अरे भैया वो बहुत बड़ा पेचीदा इश्यू है, हमने डिस्कस किया था, अभी उसके ऊपर हम अभी चर्चा नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट अभी एट लेवल दिस नहीं है। अभी हमारा सब्जेक्ट ये है कि जो राहुल गांधी ने बोले और नरेंद्र मोदी जी ने जो सॉफ्टली मेरे हिसाब से आज जो जवाब दिए हैं, इसमें से हमारे देश के अंदर आने वाली कल जो है उसमें मुझे एक लगता है कि कांग्रेस के माध्यम से या ऑपोजिशन के माध्यम से क्या कोई फॉरेन एजेंसीज इज ट्राइंग कि हमारे देश की प्रगति अटक जाए, हमारी प्रगति रुक जाए। जिस तरह से लोकसभा में जो हेल्दी बात होनी चाहिए, वो हेल्दी बात क्यों राहुल गांधी जी ने शुरू नहीं की? सर आप मेरी बात सुनिए, ऑपोजिशन कल सर वो विपक्ष में है, विपक्ष आपकी बात क्यों करेगा? जैसे विपक्ष कैसे अपेक्षा रख सकता है कि मोदी जी उनकी बात करेंगे? तभी तो विरोधाभास है ना दोनों के बीच में। हाँ, अच्छी तो बात सीधी है। सादी बात है ना सर। तो मेरा ये कहना है, देखो- हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द ऑपोजिशन टू टो द लाइन where नहीं, you are नहीं, concerned toe the line and is- the opposition नहीं, नहीं, cannot expect Mr. Modi to toe the line. Now, very frankly, I expected Mr. Modi to talk about development. I expected Mr. Modi to talk about his vision for the next 100 days, for the next 365 days. I expected him to announce कि भाई हम लोग इतने नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे नया पोर्ट बन रहा है, यहाँ पर नया एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर हम लोग ये करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट 10 करोड़ जॉब्स और 2 करोड़ जॉब्स और इवन 1 लाख जॉब्स। He talked of nothing of that sort. मेरा ये कहना है सर, उसके बारे में कब बात करेंगे? I expected, very frankly speaking, yes, I yes, expected Mr. Modi to ignore Mr. राहुल गांधी। राहुल Yeah. गांधी जी के बारे में जो उन्होंने परिभाषा दी है ना उनके भाषण की, उनका भैया बचकानी हरकत है। अगर बचकानी हरकत है तो उसके बारे में 80% ऑफ मिस्टर मोदी स्पीच कंसिस्टेड ऑफ राहुल गांधी। तो उसकी मतलब उसका क्या मतलब हुआ सर? आप खुद बताइए। सर, मुकेश गांधी साहब। दो दिन लगातार गांधी साहब हम लोग देख रहे, 2 दिन वेस्ट हो गया, देखो, पूरे देश के पार्लियामेंट का वेस्ट राजीव- हो गया। पहले दिन राजीव और जी, भगवान को राजीव फोटो जी, वोटो निकाल के जो बात मैं- किए, और दूसरे दिन उसका मैं- रिस्पॉन्ड करते हुए। सर देयर वाज नो नीड मैं टू आपकी रिस्पॉन्ड। बात मैं आपकी बात के साथ बहुत सम्मत हूं कि नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। इलेक्शन के पहले भी मोदी जी जैसे इतने बड़े व्यक्ति ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट के ऊपर अपने सारे भाषण दे दिए, जिनका रिवर्स इफेक्ट उनके इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर पड़ा। Sir, even और now आप he is doing जो the same कहते हैं, thing. The आप BJP जो has कहते fallen into the Congress trap. कांग्रेस ने अटका दिया है सर, सीधी बात है। मोदी जी को सिर्फ यही बात करनी चाहिए थी मेरी समझ में कि ये यहाँ पे विकास होगा, आगे चल करके हम लोग ये करेंगे। और अगर ऑपोजिशन के लीडर, बिकॉज ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देयरफॉर हैज टू बी टेकन सीरियसली, कि भाई उसका 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 जो भी निर्णय होगा स्पीकर साहब लेंगे अगर उन्होंने कोई गलत किया है। दैट्स इट। वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मिस्टर मोदी। सर आप खुद बताइए मुकेश गांधी साहब, मेरी एक सेकंड बात सुने, उसके बाद आप पूरा बोले। मोदी जी का जो स्टेचर है इस वक्त, ही इज अ वर्ल्ड लीडर सर। पूरी दुनिया उनको मानती है कि वो हमारे नेता हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी को इस तरह से बात करनी चाहिए थी, मुझको ऐसा लगता है। अब आप बताएं, अब आप बोलें सर प्लीज। देखिए राजीव जी, आपका एनालिसिस को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मोदी जी को राहुल गांधी की स्पीच को इतना महत्व नहीं देना चाहिए था। उनके खाली जितने भी लेक्चर जो उनका 1.5 घंटे का मेरे ख्याल से चला, उसमें से 10-12 मिनट दे दी राहुल गांधी के बारे में, और बाद में आने वाले हमारे 100 डेज, हमारी आने वाली कल, उनके लिए हमारी क्या योजनाएं होगी, क्या होगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक उनको बात करनी चाहिए थी। ये भी मेरे मन में बात आई थी जो आपने अभी आपने रजूआत की, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। आई सपोर्ट यू। गांधी साहब, पर जब क्या हो गया, राहुल क्या हो गांधी गया? जी, लेट हिम फिनिश। Yes, yes. जी सर आप बोल रहे थे। अभी क्या है राजीव जी, इसमें क्या है, आप मैंने जैसे पहले कहा ना कि राहुल गांधी की बहुत एकदम परफेक्ट स्टाइल है।
मैं उसके लिए उसको सैल्यूट भी करता हूं कि वो पूरी चीज को ऐसी डाइवर्ट कर देते हैं, ऐसी गुगली मार देते हैं कि सामने वाला वो बॉल के आगे पीछे ही घूमता रहता है और बैट बचाने का, अपनी स्टंप बचाने का ट्राई करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को डिफेंड करना है तो सिस्टमेटिक करके 10-15 मिनट बोलो और अपने दूसरे कलीग को बोलो कि उनके ऊपर आप बैटिंग करो। पर नरेंद्र मोदी जी को अपनी गरिमा को एस्टैब्लिश करने का बहुत ही अच्छा मौका है जी। और अभी भी लोगों के अंदर एक पूरा विश्वास है और वो विश्वास उनको पकड़ के रखना चाहिए। मुकेश गांधी साहब, मेरी अपेक्षा ये थी कि आज मोदी साहब किसानों के बारे में कुछ कहेंगे और ये जरूर कहेंगे कि अब हम एमएसपी के ऊपर कानून बना रहे हैं कि नाउ द एमएसपी वी विल पास एन एक्ट कि एमएसपी देनी ही पड़ेगी। मैं सच बोल रहा हूं सर, ऑपोजिशन की सारी आर्गुमेंट खत्म हो जाती। मोदी जी का ये आरोप है कि राहुल गांधी जी हैज लाइड अबाउट अग्निवीर, ही हैज लाइड अबाउट एमएसपी। अग्निवीर में जो कह रहा है कि कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता शहीद जो होते हैं, और राजनाथ सिंह ने पूरे प्रूफ के साथ कह रहा कि 1 करोड़ इज द कॉम्पेंसेशन वी गिव फॉर शहीद अग्निवीर। और एमएसपी भी जो राहुल गांधी जी ने कहा टोटल झूठा। तो हाउ डू यू सी द रिएक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पीच में भी था, यू हैव लाइड अबाउट अग्निवीर। एंड देखिए, कल अग्निवीर के बारे में राजनाथ सिंह जी ने बात कर दी और ये जो एग्रीकल्चर के जो इश्यू है किसानों के प्राइस के बारे में, उनके बारे में भी कल कृषि मंत्री ने भी बात कर दी है। तो आज वही बात रिपीट करते हुए आज नरेंद्र मोदी जी ने 2 सेंटेंस में उसको जवाब दे दिया और वो सफिशिएंट था, उसको आगे नहीं बढ़ाया, वो अच्छा किया। पर आज की जो चर्चा थी, आज जो मोदी जी का जो भाषण था, आज मोदी जी के भाषण में मैं तो एक ऑब्जर्व करता था कि इतना कोलाहल, इतना शोर बकोर, एक सरीखा, एक प्राइम मिनिस्टर जब बोलता है और पूरा वर्ल्ड उसको सुन रहा है, तब राहुल गांधी बैठे बैठे हंस रहे थे और उनके पीछे की सीट के ऊपर से लोग खड़े होकर के पूरा माहौल और पूरी बूमा बूम कर रहे थे। वो राहुल गांधी को रोकना चाहिए था और नरेंद्र मोदी जी को आने वाली कल हमारी कैसी है, भारत का प्रोग्रेस क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बोले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बोले हैं, पर उनको एलोबरेटिव वो बात आज करते। ये 2 चीज आज अगर हो जाती ना तो आज की ये सेशन बहुत हेल्दी हो जाती, ऐसा मैं मानता हूं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम रियली एंड ट्रूली डिसअपॉइंटेड। इसके लिए the prime minister need not have bothered. I mean, if he really thought कि जो राहुल गांधी जी का जो भाषण है, if it had not affected him, मुझे ऐसा लगता है जैसा आपने कहा ना कि वो जो उन्होंने गुगली डाली राहुल गांधी ने, वो बीजेपी उसके आसपास ही खिल रही है। they've got disturbed. राहुल गांधी ने डिस्टर्ब कर दिया सर बीजेपी को, मुझको ऐसा लग रहा। यस, वो तो मैं कहा आपको, आपकी बात से सहमत हूं मैं बिल्कुल। which means the Congress has succeeded. मतलब इवन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जो नरेंद्र मोदी साहब ने वो भैंस के बारे में और वो जो क्या बोलते हैं उसको मंगलसूत्र के बारे में वो सब कहने की आवश्यकता नहीं थी उनको। सीधी बात है। देखिए राजीव जी, जैसे राहुल गांधी गुगली मार रहे हैं, वैसे यहाँ महाराष्ट्र में भी शरद पवार जी और उद्धव गुगली मारते हैं और हमारे यूपी के लोग भी उसके आगे पीछे घूमते जाते हैं। तो आप एडवाइस कीजिए ना उनको। अरे सर आप सलाह दीजिए ना। देखिए, एडवाइस तो हम करते हैं, हम तो 1-to-1 बात करते हैं। हम कई बातों में उनको बोला भी है, हमारे नेताओं को, कि आपका ये डिसीजन गलत है, पर राजा किसी का मानता नहीं है, राजा अपनी चाल पे चलता है। तो आपके मुताबिक चलते चलते असेंबली इलेक्शन में आपके मुताबिक परिणाम लोकसभा से अलग होंगे महाराष्ट्र में? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी मुझे लगता है राजीव जी, ये 12 तारीख को सेशन पूरी हो जाती है महाराष्ट्र असेंबली की जी, तो ये विधानसभा पूरी हो जाएगी, ये सत्र पूरा हो जाएगा। बाद में 15 दिन में मुझे लगता है बहुत बड़ी राजकीय घटनाएं हो जाएगी, उथल पाथल होने वाले। कुछ शेयर करो ना सर, कुछ जानकारी शेयर करो। आयाराम गयाराम होने वाला है। अजित पवार जी कह रहे हैं कि शरद पवार जी के पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, कि इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अजित पवार के सब आने वाले। बोले असलियत में शरद पवार जी के पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, अजित पवार जी का कहना है। देखिए क्या है, अभी जो भी होगा ना, सच आपको अगले 15 दिन में
आपको मालूम पड़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत बहुत प्रवाही है, बहुत प्रवाही है। अच्छा मुकेश गांधी साहब, ये तो अभी बता दो, छगन भुजबल साहब रहेंगे कि नहीं रहेंगे साथ में, कि वो जा रहे हैं दूसरी वापस जा रहे हैं, घर छगन वापसी हो रही है भुजबल, उनकी? अगर छगन भुजबल चले गए एनसीपी अजीत पवार में से, तो पार्टी में कुछ रहेगा नहीं। क्योंकि छगन भुजबल एक बहुत बड़े स्ट्रांग लीडर है, और मुझे नहीं लगता है कि छगन भुजबल की जी ये अजीत पवार गठ को छोड़ के जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। पर उनका जिस तरह से उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, वो अजीत पवार गठ को, नेताओं को और बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये बात बिल्कुल ठीक है सर, आई एग्री विद यू एंटायरली। एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए, और जैसा कि आदरणीय सम्मानीय मोहन भागवत जी ने एडवाइस दी थी नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी को, वो यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यस यस। अहंकार नहीं करना चाहिए सर, अहंकार नहीं करना चाहिए। सीधी देखिए बात। क्या है, आपने पहले कुछ राजू जी सुना होगा ना, तो ये अपने क्या नाम इनका, बीजेपी के, ओहो नाम एकदम जबान पे था, वो लॉयर अपने क्या, वो उन्होंने बताया था, उन्होंने अकेले ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 220 सीट बीजेपी की आएगी। और उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि अगर अहंकार में रहेंगे तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर वापिस नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। ये बात करने डॉक्टर वाले सुब्रमण्यम हमारे- स्वामी की बात कर। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी की जी, बात जी। करता हूँ। तो ये क्या है कि बीजेपी को और हमारी यूपी गवर्नमेंट को अभी जो उनकी क्रिटिसिज्म फॉर क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए करते हैं, तो क्रिटिसिज्म को सुनना चाहिए। जी, पर दुरुस्त। आज सभी नेताओं को, महाविकास आघाड़ी में होंगे या किसमें भी होंगे, आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने भी हिंदुत्व के बारे में वापस अपनी वही पुरानी रिकॉर्ड बजाई और बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया, ये नहीं करना चाहिए। उद्धव जी कुछ भी है तो भी बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है, और शिवसेना की पूरी नेतृत्व उनके हाथ में है। अभी आगे जाने वाले समय के अंदर मुझे तो लगता है कि हिंदुत्व और धर्म का पूरा मुद्दा छोड़ के सिर्फ महाराष्ट्र के विकास के लिए ये सभी पार्टियों को बात करनी चाहिए, Right. और धर्म की बाबत को छोड़ देनी चाहिए। थैंक अगर यू ये सो मच नहीं सर छोड़ मुकेश गांधी। देंगे, ये मुकेश नहीं गांधी छोड़ साहब, देंगे, तो मैंने पहले कहा था वैसा हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन के पहले ही सिविल वॉर जैसी पोजीशन आ जाएगी। Right. तो आ इसको गया। आ रोकना गई है चाहिए। सर, आ गई गया है। already. आ गई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट नमस्कार। प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, लवली एनालिसिस। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। Well, we had 2 days of Parliament, very interesting, very, very interesting to watch, very entertaining to watch. Well, what did we learn? We learned, well, nothing. Let's ask Kishore Tiwari साहब। किशोर तिवारी साहब, नमस्कार।